ان کے خاندان کے کچھ افراد شہید ہو گئے، کچھ بھاگ گئے اور امی اس بری حالت میں اکیلی رہ گئی۔ میرے دادا جان انہیں اپنے گھر لے آئے اور میرے ابا جان کے ساتھ شادی کر دی۔ یہ ہیں میرے والدین جن کے دلوں میں ہندوؤں کی ایسی نفرت بھری ہوئی ہے، ان کا بس چلے تو اس ملک میں نہیں تو کم از کم امبالہ شہر کے کسی ہندو کو زندہ نہ چھوڑیں۔ وہ تو اکثر پاکستان کی باتیں کرتے رہتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اب بھی کوئی بندوبست ہو جائے تو وہ یہاں سے پاکستان ہجرت کر جائیں۔ آپ انہیں صاف الفاظ میں بتانا کہ ڈاکٹر رشید کے چلے جانے کے بعد میرے لیے ہسپتال میں کیسے کیسے خطرے تھے۔ یہ بھی بتانا کہ ایک ہندو فوجی ڈاکٹر نے تو مجھے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ مجھے ہندو بنا کر میرے ساتھ شادی کرے گا۔ میں نے یہ باتیں کبھی بھی اپنے ابا جان یا امی کو نہیں بتائی تھی۔ آپ انہیں بتانا کہ آپ کی بیٹی کی عزت و آبرو کو محفوظ کرنے کے لیے اور اسے اپنے مذہب میں ہی رکھنے کے لیے پاکستان بھجوا دیا ہے۔ ڈاکٹر رشید کی ساری بات انہیں بتانا جو میں پہلے انہیں بتا چکی ہوں۔ ان کے سارے غم ختم ہو جائیں گے، لیکن یہ آپ کا کام ہوگا کہ آپ میں سے کوئی نہ کوئی 1-2 دنوں بعد انہیں ملتا رہے اور انہیں تسلی دیتا رہے۔ میں اگر پاکستان میں زندہ اور سلامت پہنچ گئی تو انہیں تفصیلی خط لکھوں گی۔ اس محفل پر کچھ دیر کے لیے سناٹا طاری رہا۔ خالدہ نے یہ بات اس طرح سنائی تھی کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ جا رہے تھے اور آواز میں غم اور درد بھرا ہوا تھا۔ ہندوستان کا اگر ہر مسلمان نہیں تو ہر تیسرا مسلمان ایسے ہی خونچکاں اور دردناک کہانی کا کردار ہے۔ ڈاکٹر رشید کو تو پہلے ہی خالدہ نے اپنے خاندان کی ٹریجڈی سنا رکھی تھی۔ رشید کے دوستوں کے لیے یہ ایک نئی بات تھی، یہ ایک کہانی نہیں سنی تھی، یہ تو انہوں نے سینکڑوں سنی تھی، لیکن خالدہ کے ساتھ ان کا ایسا تعلق ہو گیا تھا جس میں تقدس بھی تھا اور جذبات کی تپش بھی۔ رشید کے دوستوں پر ایسا تاثر طاری ہو گیا کہ وہ جو مہم سر کرنے نکلے تھے، یہ مہم ان کے لیے ایک چیلنج بن گئی اور انہوں نے دل ہی دل میں ایک بار پھر یہ عہد کیا کہ رشید اور خالدہ کو جان کی بازی لگا کر سرحد پار کرائیں گے۔ دکھ والی بات تو صرف ایک ہے، ڈاکٹر رشید نے کہا، پاکستان کے متعلق ہماری جو سوچ ہے اور پاکستان کی عظمت جو ہماری آنکھوں میں ہے، پاکستان میں اس کا نام و نشان بھی نہیں ملتا سوائے اس کے کہ یہ ایک اسلامی ملک ہے۔ پاکستان کے لیڈروں میں ذرا سی بھی قومی غیرت ہوتی تو پاکستان ہندوؤں کے ہاتھوں یوں آدھا نہ رہ جاتا۔ ہندوؤں کی لیڈرشپ نے پاکستان کو ایک کمزور ملک بنا کر کمزور ملکوں کے کوڑا کباڑ میں پھینک دیا ہے۔ میں صرف اس لیے پاکستان جا رہا ہوں کہ یہ اسلامی ملک ہے اور وہاں ہندوؤں کا خطرہ نہیں ہوگا۔ پاکستان کو سب سے بڑا خطرہ اپنی لیڈرشپ سے ہے، اشتیاق نے کہا۔ ہمارے کچھ عزیز ہجرت کر گئے تھے، ان میں سے کوئی نہ کوئی 3-4 سال بعد ملنے آ جاتا ہے۔ ان عزیزوں سے پاکستان کے احوال و قوائف سنتے ہیں تو بہت ہی افسوس ہوتا ہے۔ میرے والد بتایا کرتے تھے کہ قائد اعظم نے کہا تھا کہ پاکستان دارالاسلام ہوگا اور برِ صغیر کے تمام مسلمانوں کے لیے دارالامان ہوگا، لیکن سنا ہے کہ وہاں پاکستانی دوسرے ملکوں میں بھاگے جا رہے ہیں۔ یہ بالکل صحیح ہے، وہاب نے کہا۔ پاکستان کے سبز پرچم میں ہمارے خون کی لالی رچی بسی ہوئی ہے۔ ہمارے باپ دادا جانتے تھے کہ ہمارا علاقہ پاکستان میں نہیں آئے گا، پھر بھی انہوں نے اسلام کے نام پر ایک نئی اسلامی مملکت کے قیام کے لیے قربانیاں دی اور کفار نے انہیں جو سزا دی وہ ہم اپنے والدین سے سنتے ہی رہتے ہیں اور اب خالدہ سے بھی سن لیا ہے۔ پھر بھی میرا خیال کچھ اور ہے، ڈاکٹر رشید نے کہا۔ خرابی قباحت پاکستان میں نہیں بلکہ یہ اس قیادت کا گناہ ہے جس نے پاکستان کو اپنے باپ دادا کی جاگیر سمجھ کر اسے پٹیالہ اور نابا جیسی ریاست بنا لیا ہے۔ یہ ہماری اور پاکستان کے عوام کی ذمہ داری ہے کہ اس قیادت سے اپنے ملک کو آزاد کریں، پھر اسے وہ طاقت بنائیں جس نے کیسر روم اور کسرا ایران کو تاریخ میں عبرت کے نشان بنا دیا تھا۔ یہ طاقت ایمان کی پختگی سے پیدا ہوتی ہے۔ ایمان کی پختگی قوم میں علماء دین پیدا کیا کرتے ہیں اور پھر اسے زندہ و بیدار رکھتے ہیں، ظفر نے کہا۔ لیکن جہاں علماء دین بھی سیاسی لیڈر بن جائیں وہاں سے ایمان بھی اور رحمت کے فرشتے بھی رخصت ہو جایا کرتے ہیں۔ یہی ہماری یعنی انڈیا کی ٹریجڈی ہے، ڈاکٹر رشید نے کہا۔ پاکستان کمزور ہوتا ہے تو ادھر ہندو انڈیا کے مسلمانوں پر شیر ہو جاتے ہیں۔ جہاں ہندو قیادت کو اور ہندو عوام کو ذرا سا بھی شک ہو جاتا ہے کہ پاکستان جنگی طاقت کا کوئی مظاہرہ کرنے والا ہے تو یہاں کے ہندو مسلمان کو ہاتھ جوڑ کر پرنام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پاکستان کی اصل ٹریجڈی یہ ہے کہ وہاں کی قیادت نے اپنی عیش و عشرت کی خاطر امریکہ کی غلامی قبول کر لی ہے۔ اب تو پاکستان غیر ملکی اور غیر مسلم عالمی ساہوکاروں کے قرضوں کی زنجیروں میں جکڑ گیا ہے۔ اس کے باوجود میرے دوستو، ایک اور دوست نے کہا، ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو مایوسی گناہ ہے؟ دوسرے یہ کہ پاکستان اللہ کی زمین ہے۔ اللہ نے جس طرح قرآن کی حفاظت اپنے ذمہ لے رکھی ہے، اسی طرح پاکستان کا دفاع بھی اللہ نے اپنے ہاتھوں میں رکھا ہوا ہے۔ اس کی صاف نشانی یہ ہے کہ پاکستان کی قیادت تو کبھی کی پاکستان کا سودا کر چکی ہے اور اس نے ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں جن حالات میں کوئی طاقتور ملک بھی زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن پاکستان زندہ ہے اور انشاءاللہ زندہ رہے گا۔ یہ شہیدوں کی سرزمین ہے،
शहीदों का हिसाब सैयद अहमद शहीद के वक्तों से शुरू कर दें और अब तक हिसाब कर लें। पाकिस्तान की जमीन का एक एक इंच शहीदों के लहू से मुनव्वर है। इन शहीदों के सदके अल्लाह ने पाकिस्तान को जिंदा रखा हुआ है और ये मुल्क ताअबद जिंदा रहेगा। ये तो अल्लाह का फरमान है। डॉक्टर रशीद ने कहा, जुल्म जब इंतहा को पहुंच जाता है तो मजलूम एक ताकत बनकर उठते हैं और अल्लाह उनका साथ देता है। पाकिस्तान के मजलूम भी उठेंगे, इन्हें अल्लाह उठाएगा और फिर अल्लाह इनके साथ हो जाएगा। ऐसी गुफ्तगू अक्सर महफिलों में हुआ करती है। सबका अंदाज जज्बाती होता है और हर किसी की कोशिश होती है कि वो ज्यादा पुरस्रार और खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल करे, और जब महफिल बर्खास्त होती है तो इसमें सब कहा सुना जहनों से उतर जाता है। लेकिन आगरा की इस महफिल का अंदाज हकीकत पसंदाना था और इसमें बोलने वाले सब लोग अमलन कुछ करने का तहैया किए हुए थे। बातों बातों में वक्त इतनी तेजी से गुजरा कि पिछले पहर के 4 बज गए और अब्दुस्तार आ गया। रशीद के निकल आने का किसी को पता तो नहीं चला। वहाब ने अब्दुस्तार से पूछा, अभी नहीं। अब्दुस्तार ने जवाब दिया, शाम को गिनती के वक्त पता चलेगा और फिर कुछ शोर शराबा उठेगा। शाम को जब पागलों की गिनती हुई तो एक बैरक में एक पागल कम था। वार्डन और दीगर मुलाजिम गुमशुदा पागल को इधर उधर ढूंढने के लिए बिखर गए। बैरक के करीब वो ना मिला तो झाड़ियों में ढकी छुपी जगहों पर जाकर देखने लगे। वो कहीं नजर न आया। झाड़ियों और घने और ऊंचे पौधों में उसे ढूंढते ढूंढते एक झाड़ी में से कपड़े गिरे। उन्हें खोल कर देखा गया तो उनमें लंबे और छोटे बाल लिपटे हुए थे। ये समझना कोई मुश्किल नहीं था कि ये कपड़े किसी पागल के हैं और इस पागल के बाल काटे गए हैं। हो सकता है कि ये उसी गुमशुदा पागल के हों। वार्डन ये कपड़े और बाल उठाए उस रोज के ड्यूटी ऑफिसर के पास गए और रिपोर्ट दी कि एक पागल गायब है और झाड़ी से ये कपड़े और बाल मिले हैं। ड्यूटी ऑफिसर ये रिपोर्ट सुनकर परेशान हो गया। ये तो पुलिस का केस है। ड्यूटी ऑफिसर ने कहा, अगर ये कपड़े और बाल इसी गुमशुदा पागल के हैं तो साफ पता चलता है कि उसे यहाँ से निकाला गया है। उसका हुलिया बदलने के लिए उसके लंबे बाल काटे गए हैं और दूसरे के कपड़े पहनाकर उसे फरार कराया गया है। ये कपड़े उसी बैरक में ले जाओ और जो पागल जरा होशो हवास में रहने वाले हैं उनसे मालूम करो कि गायब हो जाने वाले पागल ने यही कपड़े पहन रखे थे या ये किसी और के हैं। वार्डन उस बारक में गए और 3-4 पागलों को बुलाकर कपड़े दिखाए और पूछा कि जो गायब है क्या ये उसके कपड़े हैं। उस बारक में उन पागलों को रखा गया था जो हंगामा और दंगा फसाद नहीं करते थे, आराम से एक जगह बैठे रहते या लेट जाते या वैसे ही घूमते फिरते रहते थे। उनसे अकल की किसी बात की तवक्को नहीं रखी जा सकती थी। मुझे दिखाओ ये कपड़े, एक पागल ने कहा। वार्डन ने कपड़े उसे दिखाए तो उस पागल ने चेहरे पर अजीब सा तासुर पैदा कर लिया। कपड़ों को खोलकर बड़े गौर से देखा और फिर ये कपड़े ऊपर को उछाल कर कहा, वो जो आ गया वो बस चला गया। एक और पागल ने कपड़े उठाकर वार्डन को दिए और बोला, ये कपड़े उसे दे दे और उसे मेरी तरफ से ये कहना, ए हरामजादे, तुम नंगे ही बाहर आ गए हो, ये लो अपने कपड़े पहनो। उस पागल ने बड़ी जोर से कहकहा लगाया तो बारक के कई और पागल दौड़े आए और वार्डन के इर्द गिर्द खड़े होकर कुछ न कुछ बोलने और जोर जोर से हंसने लगे। वार्डन के लिए वहां से निकलना मुश्किल हो गया। वो निकल तो आया लेकिन गुमशुदा पागल के कपड़े बारक में ही छोड़ आया। ओ संतरी, एक पागल कपड़े उठाए हुए वार्डन के पीछे दौड़ आया और बोला, इसके कपड़े ले लो और उस तक पहुंचा दो, वो नंगा फिर रहा होगा। वार्डन दौड़ता हुआ ड्यूटी ऑफिसर के पास पहुंचा और उसने बताया कि पागलों ने उसके साथ क्या सलूक किया है। ड्यूटी ऑफिसर उस वजह से घबराया हुआ था कि उसकी ड्यूटी के दिन एक पागल कम हो गया था। उसे किसी पागल के साथ कोई हमदर्दी नहीं थी। उसके लिए ये मसला पैदा हो गया था कि उसे बाज पुरस होगी और ये भी पूछा जाएगा कि उसने क्या कार्रवाई की थी। वो वार्डन्स और दीगर जिम्मेदार स्टाफ पर बरस रहा था। ये पागल हमारे कैदी नहीं, उसने कहा, लेकिन ये मत भूलो कि इनके लवाहिकीन इन्हें हमारी जिम्मेदारी में यहाँ छोड़ गए हैं। कल कोई इस गुमशुदा पागल का वारिस आ गया और उसे हमने ये बताया कि तुम्हारा मरीज गायब हो गया है, तो वो सीधा पुलिस के पास जाकर हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा देगा। जरा सोचो, तुम उसे कहाँ से लाओगे? जाओ और उसे ढूंढो। पागल खाना बहुत ही वसी और अरीज था। अमले के कई आदमी फिर दौड़ पड़े। अब अंधेरा फैल गया था। बत्तियां जल रही थी लेकिन तारीख जगह भी कम नहीं थी। रोशनी के मुख्तलिफ इंतजामात करके अमले के आदमी गुमशुदा पागल को ढूंढते फिरे। उन्हें कौन बताता कि गुमशुदा पागल पागल खाने के करीब ही एक मकान में मौजूद है और वो पागल नहीं, होशो हवास की बातें कह और सुन रहा है। अब्दुस्तार जब 4 बजे घर पहुंचा था तो उसने सबसे पहले ये देखा कि डॉक्टर रशीद के बाल जल्दबाजी में छोटे किए गए थे और दाढ़ी भी बड़ी उजलत में तराशी गई थी। उसने बेहतर समझा कि ये जरा अच्छी शक्ल में तराशे जाएं। किसी हज्जाम को बुलाना महफूज नहीं था क्योंकि बात निकल सकती थी कि यह हज्जाम अब्दुस्तार के घर एक आदमी के अजीब तरह से कटे हुए बाल सलीके से तराशने के लिए गया था। इसका ये तरीका इख्तियार किया गया कि अब्दुस्तार ने खुद ही कैंची और कंघी से रशीद के बाल बेहतर तरीके से तराश लिए और दाढ़ी की भी अच्छी शक्लो सूरत बना दी।
शेव नहीं की जा सकती थी क्योंकि शिनाख्त का डर था। जिस वक्त ड्यूटी ऑफिसर की डांट टपट के बाद अंदर कामला एक बार फिर टार्चन लेकर डॉक्टर रशीद को पागल खाने के तारीक गोशों में ढूंढ रहा था, उस वक्त उनका गुमशुदा पागल अच्छी तरह नहा धोकर खाने पर बैठा हुआ था। अब अमले के आदमी बारकों की छतों पर भी चढ़े हुए थे जो हमवार और सीधी थी, यानी स्लेटों वाली मखरूती छतें थी। गुमशुदा पागल का कहीं नामो निशान नहीं था। रात गुजर गई। सुबह पागल खाने का डॉक्टर इंचार्ज आया तो ड्यूटी ऑफिसर ने रिपोर्ट दी कि फलां बारक से एक पागल गुज़श्ता शाम लापता हो गया है। उसने गुमशुदा पागल के कपड़े और बाल डॉक्टर इंचार्ज की मेज पर रख दिए। डॉक्टर इंचार्ज ने एक ही बार में कई सवाल पूछ डाले। उस पागल का नाम अब्दुल रशीद लिखा हुआ था। क्या ये वो डॉक्टर नहीं था? ये नाम सुनकर डॉक्टर इंचार्ज ने चौंक कर पूछा, मालूम करो कि ये वो अंबाला वाला पागल तो नहीं था जिसे इंटेलिजेंस वाले यहाँ दाखिल कर गए थे। फौरन रजिस्टर मंगवाया गया तो पता चला कि ये वही पागल है जो अंबाला के मिलिट्री हॉस्पिटल में हुआ करता था। डॉक्टर इंचार्ज को याद आ गया कि दिल्ली से इंटेलिजेंस के 3-4 अफसर आए थे और डॉक्टर इंचार्ज ने खुद ही इसकी हरकतें देखकर और बातें सुनकर फैसला किया कि इस पागल की सेहतयाबी का कोई इम्कान नहीं और इसे अब यहीं मरना होगा। इंटेलिजेंस के अफसरों ने भी राय दी थी कि अब इसे लाइलाज पागल ही समझेंगे। उन्होंने ऐसा तासुर दिया था जैसे अब वो उसे देखने भी नहीं आएंगे। इतने महीने गुजरने के बाद भी वो नहीं आए थे। डॉक्टर इंचार्ज ने ड्यूटी ऑफिसर की पूरी रिपोर्ट सुनकर उसे फारिग कर दिया और इसके बाद उस बारक के डॉक्टर इंचार्ज को बुलाया। वो ईसाई डॉक्टर विलियम था। फौरन आन पहुंचा और डॉक्टर इंचार्ज ने उसे बिठा लिया। पहली बात ये पूछी कि वो अंबाले वाला पागल डॉक्टर अब किस हाल में है। बुरे ही हाल में था सर, डॉक्टर विलियम ने बताया। वो तो लाइलाज हद तक पहुंचा हुआ था। अभी अभी पता चला है कि वो गुज़श्ता शाम से लापता है। मेरे लिए क्या हुक्म है सर? हुक्म नहीं विलियम, डॉक्टर इंचार्ज ने कहा। मुझे तुम्हारे ताउन की जरूरत है। मैं किसी लंबी चौड़ी कार्रवाई में नहीं उलझना चाहता। जितने मरीज इस मेंटल हॉस्पिटल में हैं, वो हमारे कैदी नहीं मरीज हैं। अगर किसी मरीज के अजीज उसे मिलने आते हैं और नजर बचाकर उसे किसी तरह या गेट के संतरी से मिलकर साथ ही ले जाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? इस मरीज के मुतालिक मैं इसलिए कुछ परेशान हो गया हूँ कि इंटेलिजेंस की तरफ से यहाँ से दाखिल किया गया था। कहीं वो आकर उसकी ना पूछ लें। शायद ऐसा कभी ना हो सर, डॉक्टर विलियम ने कहा। वो तो साफ फैसला सुना गए हैं कि इस शख्स को अब भूल जाएं। मुझे यकीन है कि अपने रिकॉर्ड से उन्होंने इस पागल को राइट ऑफ कर दिया होगा। मुझसे बेहतर और कौन जानता होगा। मैं उसे हर रोज दवा देता हूँ। उसकी हालत बिगड़ी है, संभली नहीं। मेरी नजर उस पर सिर्फ इसलिए जाती है कि जो कुछ भी उसका जुर्म था वो डॉक्टर था। डॉक्टर के रिश्ते से मैं उसे देखता था और कर भी कुछ नहीं सकता था। क्या उसके रिश्तेदार उसे देखने आते हैं? डॉक्टर इंचार्ज ने पूछा। मेरा ख्याल है कोई नहीं आता, डॉक्टर विलियम ने जवाब दिया। गेट के रजिस्टर में देख लेते हैं। उसे देखने मेरा ख्याल है कोई नहीं आता। शायद उसके घर वालों को मालूम ही ना हो कि वो यहाँ है। ये इंटेलिजेंस का मुलजिम था। मेरा भी यही ख्याल है, डॉक्टर इंचार्ज ने कहा। इंटेलिजेंस ने उसे इसलिए बेकार समझकर यहाँ डब कर दिया था। वैसे भी बदबख्त मुसलमान है। हमें जाती तौर पर इसके साथ कोई दिलचस्पी नहीं रखनी चाहिए। अगर कहीं भाग गया है तो जाने दो। सड़कों पर घूमता फिरता किसी गाड़ी की टक्कर से अगले जहान पहुंच जाएगा। लेकिन डॉक्टर विलियम, हमें अपने रिकॉर्ड का पेट भरना है। आप अपनी रिपोर्ट में लिख दें कि ये लाइलाज था और अब इसकी जहनी हालत ये हो गई थी कि वो बारक से दूर निकल जाता और उसे वापस लाना पड़ता था। ये आप जानते हैं कि क्या लिखना है। इधर उधर की रिपोर्टें लिखकर उसे अपने रिकॉर्ड से हटा देते हैं। आप जैसे कहेंगे वैसे ही हो जाएगा, डॉक्टर विलियम ने कहा। उसे हम रिकॉर्ड में दफन कर देंगे। डॉक्टर इंचार्ज हिंदू था। उसे मालूम नहीं था कि डॉक्टर रशीद तकरीबन नॉर्मल हो गया था और वो डॉक्टर विलियम की कोशिशों और हमदर्दी का नतीजा था। डॉक्टर विलियम को यह भी मालूम था कि अब्दुस्तार डॉक्टर रशीद को फरार करवाएगा। ये काम हो गया। डॉक्टर विलियम खुश था। वो भी यही चाहता था कि डॉक्टर रशीद यहाँ से निकल जाए। वो खुद हिंदुओं का सताया हुआ आदमी था। डॉक्टर इंचार्ज ने तो विलियम को ईसाई समझकर बड़ी बेतकल्फी से कह दिया था कि गुमशुदा पागल बदबख्त मुसलमान था। लेकिन डॉक्टर इंचार्ज को मालूम न था कि डॉक्टर विलियम सुबह अब्दुस्तार के घर डॉक्टर अब्दुल रशीद यानी गुमशुदा पागल से मिल आया और उसे मुबारकबाद भी किया आया था। डॉक्टर विलियम ने वो तमाम कागजात खुद तैयार किए जो डॉक्टर इंचार्ज ने उसे तैयार करने को दिए थे और फिर ये कागजात रिकॉर्ड में रख दिए गए। इस तरह डॉक्टर रशीद आगरा के उस पागल खाने के रिकॉर्ड से गायब हो गया। मेजर उस्मान रावलपिंडी में ISI के इंटरोगेशन के एक सेल में पड़ा हुआ था। उसे इस सेल में 7-8 दिन गुजर गए थे। वो तो एक शहजादा था। वो जिनका एजेंट बना हुआ था वो उसे बाहर की शराब पिलाते और एक ना एक ऐसी हसीन लड़की उसे दिए रखते थे जो नाजो अंदाज में और सैर तारी करने में महारत रखती थी। मेजर उस्मान को अपनी इस कामयाबी पर भी बहुत खुशी हासिल थी कि उसने अपनी बीवी को धोखे में रखा हुआ था और दुनिया उसे शरीफ आदमी समझने लगी थी। वो शहजादा एक छोटे से सेल में बंद था जिसका फर्श भी नाहमवार था
اور فرش پر سوتا اور انتہائی غلیظ اور بدبودار غسل خانہ استعمال کرتا تھا۔ اس کے لیے یہی ٹارچر کافی تھا، لیکن آدمی پتھر جیسا ڈیڑھ تھا۔ اقبال جرم سے مسلسل انکار کرتا چلا رہا تھا۔ 5 اسٹار ہوٹلوں میں کھانا کھانے والے کو اس سیل میں سلور کی ٹیڑھی میڑھی پلیٹ میں پتلی دال اور 2 روٹیاں دی جاتی اور ایسے ہی ایک مگ میں اسے پانی ملتا۔ یوں لگتا تھا جیسے یہ پلیٹ اور مگ کسی کوڑے کرکٹ کے ڈھیر سے اٹھا کر لائے ہوں۔ 2-3 دن سے تو اس نے کچھ کھایا ہی نہیں، لیکن بھوک نے پریشان کیا تو اس نے دل پر پتھر رکھ کر چند نوالے منہ میں ڈالنے شروع کر دیے۔ رات کو اسے سونے نہیں دیا جاتا تھا۔ وہ فرش پر لیٹ جاتا اور جو ہی اس کی آنکھ لگتی اسے جگا کر ایک کمرے میں لے جاتے اور اسٹول پر بٹھا دیتے۔ اس سے پہلی بات یہ پوچھی جاتی تھی کہ وہ اقبالی بیان دے گا یا نہیں۔ اس نے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ وہ اقبالی بیان نہیں دے گا، نہ اس نے کوئی جرم کیا ہے۔ دوسری بات یہ کہتا تھا کہ اس کے خلاف ان کے پاس جو شہادت اور ثبوت ہے وہ لے آئیں اور اس کا کورٹ مارشل کریں۔ تفتیش کرنے والوں کو صرف اقبالی بیان کے ساتھ دلچسپی نہیں تھی، وہ تو انہوں نے کرا ہی لینا تھا۔ وہ دراصل یہ چاہتے تھے کہ میجر عثمان اپنے رنگ کے تمام افراد کی نشاندہی کر کے انہیں گرفتار کروا دے۔ میجر عثمان تو اس مشینری کا چھوٹا سا پرزہ تھا۔ پرزہ خراب یا ضائع ہو گیا تو دوسرا ڈال کر مشینری چلا لی۔ یہاں ضرورت پوری مشینری کی تھی جسے توڑ پھوڑ کر پھینک دینا تھا۔ میجر عثمان اقبال جرم بھی نہیں کر رہا تھا اور اپنے رنگ کے لیڈر اور کسی ایک بھی فرد کی نشاندہی نہیں کرتا تھا۔ کہتا تھا کہ اسے کچھ معلوم نہیں، وہ نہ کسی انڈین ایجنٹ کو جانتا ہے۔ اسے یہ لالچ بھی دیا گیا کہ وہ چند ایک آدمیوں کو پکڑوا دے تو اسے وعدہ معاف گواہ بنا لیا جائے گا۔